Any problem? Or you can ask the question problem from exercise 5.13. Sir, fourth question, third part. Exercise 5.13. Yes, sir. Okay. Fourth question, Sixth. third part. Sir, sixth का fifth. Sixth question, fifth part. Good. Now, any other? Otherwise, कुछ आगे के भी मैं डिस्कस कर लूंगा आज आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं. और 11th का first और second, sir. 11th का first और second. 7th, sir. 7th. 7th का first and second. Yes, sir. Okay. Now come to fourth question, third part. Let y is equals to sine 3x into sine 5x. So don't apply the formula directly in this section because of that. जब आप first time derivative करेंगे तो ये हमारे पास convert हो जाएगा into two terms, and after that अगर आपने फिर से dy by dx किया तो two terms double हो जाएंगी, convert into the four terms. So first apply divided by 2 multiplied by 2 sine 3x into sine 5x, and apply the formula of 2 sine a into sine b. The formula of 2 sine a into sine b from class 11th is cos a minus b. सर साइन के साथ कॉस दे रखा है. साइन के साथ cos है तो अरे वाह, तो फार्मूला और इजी हो जाएगा. कोई नहीं, ट्रिक अभी भी यही लगनी है, cos cos. ठीक है, तो बस फार्मूला चेंज हो जाएगा. cos sin a into cos b means very first formula. The very first formula is sin a plus b plus sin a minus b. So sin a plus b, that is 8x, plus sin a minus b means minus 2x. So y is equals to half of sin 8x minus sin 2x. So differentiate of dy by dx, half sin 8x is cos 8x with 8 minus sin 2x is cos 2x with 2. And now you can take the common 2. तो आपके पास आएगा 4 cos 8x minus cos 2x. Again differentiate d2y by dx square. You need to second derivatives. So ये benefit रहा इसको convert करने से कि आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज नहीं हो रही है. 4 cos 8x is माइनस sin 8x और x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, माइनस cos 2x is sin 2x नेगेटिव and multiplied by the coefficient of this. It is your answer. कॉमन ले सकते हैं 2. तो ये कन्वर्ट हो गया आपका, फोर्थ का थर्ड सॉल्व हो गया. इसके बाद हम चलते हैं सिक्स क्वेश्चन नंबर. 6 का कौन सा पार्ट था? मैंने फिफ्थ लिख दिया. फर्स्ट सेकंड, विच वन? Fifth, sir. Fifth ये था. Sir, 5.12. 5.12. 5.12. देखा, जब मैं पूछ रहा था इतनी देर तक तो आप बता नहीं रहे थे. 5.1. नहीं सर, मैं लेट ज्वाइन करा सर. ओके, 6 का फिफ्थ पार्ट. ओके, so exercise 5.12 question number 6 fifth part is x is equals to given है 3 cos theta minus 2 cos cube theta, and y is given you 3 sin theta minus 2 sin cube theta. So apply the formula is dx by d theta, that is 3 cos theta is minus sin theta minus 2. Apply the chain rule. मैं डायरेक्ट chain rule apply कर रहा हूँ. That is 3 cos square theta, right? And the differential of the cos theta is minus sin theta. So इसके बाद आप कॉमन ले सकते हैं 3 sin theta
आपके पास आएगा -1 प्लस 3 sin थीटा आपने कॉमन लिया है 2 cos स्क्वायर थीटा, that is dx by d theta, equation number 1. And now come to dy by d theta. dy by d theta is differentiate of this 3 sin theta is cos theta minus 2, इसको करेंगे हम 3 sin square theta, and the differential of the sin square theta is cos theta. Now आप कॉमन ले सकते हैं 3 cos theta, 1 minus 2 sin square theta, equation number 2, that is dy by d theta. आपकी नीड है dy by dx, so equation 2 divided by equation 1, so dy by dx is equals to 3 cos theta 1 minus 2 sin square theta, और आपके पास आता है 3 sin theta minus 1 plus 2 cos square theta. ये कैंसिल कर दीजिए, आपने हो सकता है यहाँ आंसर मैच करने की कोशिश की हो और वो मैच ना हो पाया हो, ऐसा भी हो जाता है, मुझे नहीं पता पीछे क्या है, एक कोशिश करके देख लेते हैं। थीटा या है तो पीछे, हैं कॉट थीटा है पीछे। पीछे सिर्फ कॉट थीटा है, तो इसको हम जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए, इसीलिए मैंने कहा या तो आप कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लें या साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो ये कॉट थीटा तो इतना पोर्शन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 minus 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया मैंने 1 minus कॉस स्क्वायर थीटा, ये लीजिए। आइडिया लगने लगता है, मैंने कहा ना एक स्टेप हम और सॉल्व करके देखेंगे तो मिल जाएगा, तो अच्छी बात है cos 2 theta. जी। सर 2 cos 2 थीटा का फॉर्मूला है बनता है। हाँ 2 cos स्क्वायर थीटा -1 में आप लगा सकते हो, लेकिन इनके लिए बेटर है एग्जाम में अगर याद नहीं आए तो ज़्यादा बेटर है कि आप ये अप्लाई कर लें, जिससे कि ये मैच आपको होता हुआ दिख जाए। फॉर्मूले पे मैं बहुत जहाँ नीड होती है वहीं कंसंट्रेट करता हूँ, ये थ्योरी आपको कम से कम अभी 2 साल बाद समझ में आएगी, क्योंकि लॉजिक पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, फार्मूले पे कम करना चाहिए, मेरी शुरू से ये अप्रोच है। फार्मूले कई बार एग्जाम में धोखा दे देते हैं, भूल गए हम 1% तो वहीं बैठे रह जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर ये प्रूव दैट करने के लिए आता है क्वेश्चन कि प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, तब तो नीड है यहाँ तक सॉल्व करने की। अदरवाइज यहाँ तक करने के बाद अगर कोई एग्जाम में छोड़ आता है dy बाई डी एक्स, तो मार्क्स तब भी मिलते हैं। तो प्रूव दैट में तो क्लियर हो जाता है कि इसको सिंप्लीफाई हमें करना ही करना है, तो ये कैंसिल हो गया। तो मैं हमेशा बेसिक्स पर ज़्यादा जोर देता हूँ, ठीक है। वो तो cos 2 थीटा की दोनों आइडेंटिटी हम लोगों को पता है पहले से भी, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 minus 2 साइन स्क्वायर थीटा। बट आपने देखा कि सर ने ये डायरेक्ट नहीं लगाई है ना, वरना तो दोनों cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसिल हो जाता। इम्पॉर्टेंट, जब भी आप पढ़ाई करें स्टडी करें, पहले सबसे पहले माइंड में ये कंसंट्रेट करें। मोटी किताब 2 होंगी आपके सामने, आप जब इनको पूरा पढ़ चुके होंगे, अभी इंडिविजुअल तो हमें याद रहती हैं, जैसे अभी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन की बहुत सारी प्रॉपर्टी याद हो जाएंगी, लेकिन हमारे लिए पूरी बुक का लर्न होना जरूरी है कि एग्जाम में जब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए तो क्या हम अपने ब्रेन से उस फोल्डर में से वो फाइल एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे कि इसमें कौन सी ट्रिक लगनी थी। तो इम्पॉर्टेंट अगर ये होता है कि बेसिक्स हमारा क्लियर होता है तो हम कहीं ना कहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। बाकी तो प्रैक्टिस मैक्स से मेन परफेक्ट होता है। प्रैक्टिस जो अच्छे से करके जाएगा उसे एकदम से स्ट्राइक करेगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको एकदम से स्ट्राइक करने वाला कुछ भी नहीं है। आप हमेशा ये सोचिएगा कि आपको एक एक एक्सरसाइज से या एक चैप्टर से सवालों के जवाब नहीं देने, आपको पूरी बुक से देने होंगे एग्जाम में। तो वो एग्जाम के दोनों वॉल्यूम हमारे माइंड में बिल्कुल सेट है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ बच्चों से, बेटा आगे इंजीनियरिंग तक में भी एक बात याद रखिएगा कि पहले बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा, फिर उसके बाद सोचिएगा ट्रिक क्या हो सकती है। तो ये 6 का 5th पार्ट का 7th फर्स्ट एंड सेकंड 5.13 से ही है या कहीं और से है, ये और बता दें। 5.12 सर, 12। ओके, यानी 7th भी उधर से ही है 5.12 से। 7th का आपने मेरे से पूछा फर्स्ट एंड सेकंड,
सर आंसर उल्टे आ रहे हैं, रेसिप्रोकल में आ रहे हैं। कोई नहीं, आ जाएगा आ जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स नॉट ए बिग इशू। आपका ड्यूटी है जब क्लास ली जाए तो ऑन टाइम आप पहुंचे और प्रॉब्लम्स जिसको पूछनी है वो प्रॉपर वे में प्रॉब्लम को कंफर्म करें। ठीक है, कल भी मैं क्लास लूंगा, मैंने शेड्यूल में डाला हुआ है, कल क्लास नहीं ले पाया था तो कल क्लास जरूर लूंगा, जो अपना ऑलरेडी ऑल्टरनेट डेज का शेड्यूल है। आज की क्लास इसलिए ली गई है कि कल क्लास नहीं ले पाए थे। 7 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, इफ x is equals to 2 cos t minus cos 2t and y is equals to 2 sin t minus sin 2t. So dx by dt ये हमारे पास आ गया -2 sin t और माइनस प्लस sin 2t with 2. Equation number 1. dy by dt is 2 cos t minus 2 cos 2t and now dy by dx सब में से 2 खा गया मैं, ऐसे समझ लें आप, cos t माइनस cos 2t कॉमन लेके कैंसिल कर चुके हैं और माइनस sin t प्लस sin 2t. ओके, 7 का थर्ड पार्ट भी पूछना चाहते हैं। एंड नाउ पुट द वैल्यू पाई x की वैल्यू और t की वैल्यू आपको गिवन है, t इज गिवन पाई बाई 4. ओके, वेरी गुड। cos 45 आपके पास हो जाता है 1/√2 माइनस ये cos 90 हो जाएगा तो 0, यहाँ sin 45 माइनस 1/√2 और यहाँ sin 2t आपके पास हो जाएगा +1, तो आपके पास आता है 1/√2 और एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा √2 माइनस 1/√2, ये कैंसिल कर दीजिए डियर, तो आपके पास आ गया 1/√2 माइनस 1। बेसिकली हम लोग कभी भी यहाँ आंसर नहीं छोड़ते हैं, ये क्लास 9 से आप लोग जानते हैं कि आपको रेशनलाइजेशन कंपलसरी है, और जब रेशनलाइजेशन करूंगा तो सिर्फ √2 + 1 रह जाएगा, नीचे a + b a - b से a² - b² करूंगा तो 2 - 1 1 ही होगा, दैट इज योर आंसर। मैच कर लीजिएगा हुआ या नहीं। रेशनलाइजेशन नहीं करा था सर। हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसमें मुझे पता था यही आने वाला है मेरे पास कि सर मैं ये नहीं कर पाया था। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी अपॉन में रूट मत छोड़िए, ठीक है। 1/√2 हो और √2 - 1 हो, √2 होता तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, ये मैथमेटिकल मैनर्स है और कोई बात नहीं है। बच्चे कहते हैं सर यहाँ छोड़ दिया तो मेरा क्या गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, बट हर चीज के मैनर्स होते हैं। तो मैथ्स का जो मैनर्स है उसमें पहला मैनर्स यही है कि रैशनलाइज करना कंपलसरी है, अपॉन में रूट नहीं छोड़ते, और इसकी गहराई भी आपको क्यों नहीं छोड़ते हैं ये भी अभी कुछ साल में आपको खुद को फील होने लगेगा कि क्या रीजन था कि क्यों नहीं छोड़ते हैं। वैसे तो पता लगा सकते हो, जैसे √2 है, 1/√2 है, मैं बता देता हूँ, आइडिया देता हूँ, 1.414 ये आपके पास आता है, फिर आप इसे 1 में डिवाइड करते हैं, जब आप 1 में डिवाइड करेंगे तो डेसिमल वैल्यूज जो आएंगी आपकी उनको चेक कीजिएगा बारीकी से। और अब अगर आप इसे रैशनलाइज करते हैं, ये होता है √2/2, तो 1.414 डिवाइडेड बाई 2। अब आप डेसिमल वैल्यूज देखिएगा तो उसमें आपको डिफरेंस नजर आएगा, दोनों डेसिमल वैल्यूज के आंसर, फाइनल आंसर में आपको डिफरेंस नजर आएगा। और कहा जाता है कि ये रिजल्ट, क्योंकि हमें डेसिमल वैल्यूज, और वो भी डेसिमल वैल्यूज ऐसी जो इरेशनल नंबर है, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता। और यहाँ हमारे पास ये एक रैशनल डिजिट हो गया जिसमें 2 से ये डिवाइड भी हो रहा है 1.414 आसानी से, तो कहा जाता है ये कहीं ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होती है एज पर द फिजिक्स रूल, तो इसलिए मैथमेटिकली ये रैशनलाइजेशन बोला जाता है कि कर लिया जाए। अब क्योंकि यहाँ तो हम कोई फाइनल रिजल्ट निकाल नहीं रहे थे, इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं आई। 7 क्वेश्चन थर्ड पार्ट है, इसमें बच्चों से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो x इज इक्वल्स टू 2bt अपॉन 1 + t², और सेकेंड है y इज इक्वल्स टू a 1 - t² अपॉन 1 + t²।
मेरे पास इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, एक है थ्रू आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक है डायरेक्ट अप्रोच। क्योंकि अभी हमने आईटीएफ पढ़ाया नहीं इसलिए उसको मैं अप्लाई करना भी नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अदरवाइज पहले वाले में जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें मैं टी को साइन साइन थीटा बोल देता तो ये फॉर्मूला बन जाता है, बी को अलग करिए 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी टी को लेता टेन थीटा, तो ये होता 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन 2 थीटा का फार्मूला बन जाता। अब फिर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरह अगर मैं इसमें देखता तो ये भी टी को भी यहाँ टेन थीटा ही लेता, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा बनता है। फिलहाल क्योंकि हमने जब आईटीएफ पढ़ी ही नहीं तो आपको कंफ्यूज क्यों करें, और एग्जाम में अगर आ जाए तो फिर वही कहानी है कि याद आ जाए बहुत अच्छी बात है, वरना आप सिंपल इसमें क्वोशिएंट रूल लगाइए, dx by dt 1 plus t square to the whole square 1 plus t square 2bt is 2b minus 2bt as it is 1 plus t square का करेंगे तो आपके पास बचेगा सिर्फ 2t। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 2b तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 1 plus t square minus 2t square upon 1 plus t square to the whole square, so 2b 1 minus t square upon 1 plus t square to the whole square, that is dx by dt, equation number 1. And now reach to this section, dy by dt, apply the quotient rule, 1 plus t square to the whole square 1 plus t square, और ये आपके पास आएगा माइनस 2t, फिर हमने किया माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ए हम बाहर ही ले लें कांस्टेंट है ना, ए तो हम सबसे बाहर लिख लेते हैं ब्रैकेट लगा करके, अभी इधर बाहर लिख लेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर और ये आ जाएगा 2t, और ये मैंने ए यहाँ लिख लिया। अब 2t भी कॉमन आ रहा है तो 2at तो मैंने ये आउटसाइड मेंशन कर दिया, इससे ज़रा साइन चेंज कर लीजिएगा क्योंकि आपने 2t कॉमन लिया था, तो माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ ब्रैकेट खोलिए माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल है और आपके पास आता है माइनस 4at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो थोड़ा सा इससे कंपेयर कर लें, क्या दोनों रिजल्ट यही आ गए थे आपके, क्योंकि अब तो इजी हो जाता है क्वेश्चन, यहीं पर सिली मिस्टेक हो चुकी होती है बेसिकली। dy by dt, so dy by dx निकालें, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो आपके पास आता है माइनस 4at अपॉन 2b है ना, और 2b के साथ क्योंकि ये कैंसिल होगा तो आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, एंड नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ t and the t is given 2, तो t इक्वल्स टू 2 पर आप फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, दैट इज dy by dx। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब मैं कुछ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के 2-3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, सेवेंथ का सेकंड भी बता देते सर। अच्छा 7th का सेकंड ऑफ सेम एक्सरसाइज, यस सर। 7th पे ज्यादा दिक्कत आई आपको, कहाँ फंस गए 7th में आप? सेवेंथ क्वेश्चन सेकंड पार्ट, so x is equals to 3 sin t minus sin 3 theta and y is equals to 3 cos t minus cos 3 theta, cos 3t, and now dy by dx at t equals to pi by 3, so dx by dt 3 cos t minus 3 cos 3t, dy by dt minus 3 sin t plus 3 sin 3t, dy by dx अगर हम निकालते हैं तो 3 को
रिमूव कर दें, कैंसिल कर दें, अपॉन 3 तो हमने हटा दिया, cos t minus cos 3t, and after that you can put the value t is equals to pi by 3. तो sin 60 is root 3 by 2, sin 3t sin pi sin 180 होता है 0, cos t means cos 60 degree is half, और माइनस cos पाई की वैल्यू होती है -1, दिस इज 1। तो आप इसको प्रॉपर अब कर लीजिएगा आराम से, -√3/2, और ये आपके पास आता है 3/2, ये कैंसिल हो जाता है, -√3/3 आप आंसर छोड़ सकते हैं, रैशनलाइज ऑलरेडी हो रहा है। सो एनी अदर प्रॉब्लम? नो सर। कुछ Thank you, sir. सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के कुछ प्रॉब्लम्स हम ले लेते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में सिर्फ आपको इनवर्स पर बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, बाकी आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ 10th क्वेश्चन सेकंड पार्ट। 10th क्वेश्चन सेकंड पार्ट इज, कल आपको बता दूं, आज जो एब्सेंट है ये वीडियो तो मैं अपलोड कर दूंगा और लिंक भेज दूंगा स्कूल ग्रुप पर। साथ ही साथ कल हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। सो जो एब्सेंट हैं वो उनको आप मैसेज कन्वे कर दें। Yes, sir. Y equals to a cos nx plus b sin nx, and prove that d2y by dx square plus n square y is equals to 0. So apply dy by dx is equals to a cos nx का हो जाएगा बेटा माइनस साइन nx इंक्लूडिंग n, और b sin x b cos nx इंक्लूडिंग n, n कॉमन ले ले, माइनस a sin nx nx प्लस b cos nx, ये आपके पास है। दैट पार्ट इज कॉल्ड dy by dx। जैसी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में हम काम कर रहे हैं। हमसे बोल रहा है d2y by dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है आपको पहले। सो d2y by dx स्क्वायर इज n माइनस a sin nx is cos nx इंक्लूडिंग n, फिर b cos का होगा cos nx का माइनस साइन nx, तो इसीलिए मैंने माइनस एज इट इज छोड़ दिया, साइन nx, और साथ में आएगा इंक्लूडिंग n। अगेन यू कैन टेक द कॉमन विद माइनस n कॉमन लूंगा, तो माइनस n स्क्वायर, ये आपके पास आएगा a cos nx प्लस b sin nx। अगर गौर से देखें, इफ यू कंसंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर मेथड, so a cos nx plus b sin x is equals to the given question y। ये y ऑलरेडी आपके पास है, वैल्यू पुट करने की नीड नहीं है। यू कैन से दैट इज y फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसे इधर शिफ्ट करके यू कैन से d2y by dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y is equals to 0, hence proved। तो दैट इज अ वेराइटी ऑफ 10th सेकंड। वैसे क्वेश्चन कंपैरेटिवली अदर डिफरेंशिएशन से इजी हैं, बस आपको 2 बार जाना पड़ता है डिफरेंशियल करने के लिए। और भी मैं क्वेश्चन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को आगे, दैट्स ए वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20th मैं ले रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, बाकी आप कल प्रॉब्लम भी पूछेंगे सब मुझसे फ्रॉम इसके क्वेश्चन नंबर 10 to 25 तक के, यू कैन आस्क द प्रॉब्लम, ठीक है। और बस इनवर्स जिसमें आ जाए वो अभी इग्नोर कर दीजिएगा, और अगर सीख चुके हैं तो यू कैन ट्राई। 20th फर्स्ट है, इफ
x to the power m y to the power n is equals to x plus y to the power m plus n। अब आप करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जो भी बेटर है, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा आसान तभी बनता है जब हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लें। और हमें प्रूव करके बताना है उसको। उसने कहा है पहले प्रूव कीजिएगा कि dy बाई डी एक्स आएगा y बाई एक्स, और फिर कह रहे हैं दोबारा जब आप डिफरेंशियल करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। ये आपको प्रूव करना है। तो ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करूंगा तो डियर ये बन जाएगा m log x प्लस n log y इज इक्वल्स टू m प्लस n log x प्लस y। स्मार्ट हो गए अब आप लोग इतना ऑनलाइन पढ़ते हुए। log x इज 1/x, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। log y is 1 by y with dy by dx is equals to m plus n log t is 1/x plus y, and the differential of x is 1, y is dy by dx. So m by x plus n by y dy by dx is equals to m plus n upon x plus y को 1 में कर दें प्लस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई विद dy बाई dx। ये आपके पास है। अब डियर करना कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सिंपलीफाई ज़्यादा करना है। dy बाई dx के सेक्शन को एक साथ ले जाते हैं, एलसीएम लेते हैं, इन्हें इधर ले जाते हैं, एलसीएम लेते हैं, बहुत कुछ कैंसिल होगा। अगर बचेंगे तो सिर्फ हमारे भाई साहब y और x ही बचेंगे। देखिए कैसे। नाउ यू कैन टेक कॉमन इज dy बाई dx, और मैंने एलसीएम भी ले लिया इसमें y और x प्लस वाई। ठीक है ना, क्योंकि मैं कभी कभी ये कोशिश करता हूँ कि थोड़ा हम भी स्पीड में ही कर लें, और बच्चों को ऐसा लगता है कि बच्चों की तरह सॉल्व कर रहे हैं। कुछ बच्चे ट्रिक ज़्यादा सीख लेते हैं, हर साल ही ऐसा होता है। तो जो ट्रिक टीचर ट्रिक से ही पढ़ाते हैं वो ट्रिक सीख लेते हैं, तो उनको लगता है कि अरे यार कहाँ ये बोर कर रहा है, हमें तो शॉर्टकट इतने बढ़िया बढ़िया पता है। लेकिन ये कुछ चीज़ों का एहसास जो है वो समय गुजरने के बाद होता है। जब आप आगे जाएंगे तो आपको लगेगा कि सर क्यों एक एक स्टेप खुद कर लिया करते थे या बता के करते थे। सो इसको मैं इधर ले गया तो ये पार्ट नेगेटिव है। nx प्लस एन वाई लिखे आप, nx प्लस एन वाई माइनस इस y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन चेंज होगा तो एम वाई माइनस एन वाई। इसी तरह से आप इधर एलसीएम लेंगे x प्लस वाई, और ये आएगा x साथ में। ठीक है, तो जब ये आप इधर लाएंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे इधर हम। ठीक है, आयुष अब एंटर कर रहा है, अब तो 10 मिनट मुश्किल से रह गए। सो mx प्लस nx माइनस अगर हम करें तो ये हमारे पास, और से देख लीजिएगा बीच में एंट्री हुई। आयुष भाई आप कहाँ थे? सर नेटवर्क एरर। नेटवर्क एरर। mx प्लस nx माइनस mx माइनस my। चलिए सब आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं हम, जब आपने बोला है तो मान रहे हैं हम। सो यहाँ कैंसिल हो गया, ny कैंसिल विथ दिस ny ओनली, राइट, एंड इन दिस सेक्शन mx कैंसिल विथ दिस ओनली mx। सो यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा, कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। nx माइनस my अपॉन y x प्लस वाई विद dy बाई dx दैट इज इक्वल टू, इधर से कॉमन आ रहा है mx नहीं nx माइनस my अपॉन x प्लस वाई विद x। ये पार्ट इससे कैंसिल हुआ, ये ऊपर वाला पोर्शन ये कैंसिल हो गया। सो dy बाई dx क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें अगर हम तो वी विल रिसीव दैट y बाई x। ये हमारे पास आता है सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है dy बाई dx d2y बाई dx स्क्वायर को। तो ठीक है, वो बाद में वैल्यू पुट करके आपको करना पड़ेगा वैसे तो, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो इसको एज इट इज करना चाहें यहीं पर ही d2y बाई dx स्क्वायर। मैं लॉजिक बता देता हूँ।
टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, वेट कर, बोल आ रहा हूँ अभी। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, एक्स एज इट इज dy बाई डी एक्स माइनस y, और x का डिफरेंशियल हमारे पास हो जाता है 1. And after that, if you put the value of dy by dx is again y by x, listen carefully, dy by dx की वैल्यू रखेंगे y by x minus y upon x square, cancel with this, so y minus 1 is 0, 0, that is your the part is 0, d2 y by dx square, hence proved. Is it clear all of you? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वन वैरायटी अभी देखें तो 7 मिनट्स रह गए हैं। एक वैरायटी आपको ज़रूर बतानी है, क्वेश्चन नंबर 22, उसी के बाद मैं आप क्लास ऑफ करूंगा। थोड़ा ये तेज़ी से बताऊंगा, 6 मिनट रह गए हैं। 22nd क्वेश्चन नंबर आपके पास है, x इज इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा and y is equals to a 1 plus cos theta, or you have to need to find out d2y by dx square. So dx by d theta, solve as per the parametric rule. A theta is 1 minus cos theta, equation number 1. dy by d theta, that is a, 1 is 0, cos theta is minus sin theta, and dy by dx कर लेते हैं इसको, यही हम dy by dx is equals to minus sin theta upon 1 minus cos theta. अब देखो जैसे ये आ गया, अभी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही कि अगर याद आ जाए, अगर आप इसको यहीं पे करते हैं d2y by dx स्क्वायर, तो आगे भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है d2y by dx स्क्वायर। बट मैंने कहा अगर याद आ जाए, तो याद आ रहा है तो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, असल में दोबारा करना है हमें। अगर यही छोड़ना होता तो मैं यहाँ पर भी छोड़ सकता हूँ, बट हमें अभी दोबारा भी करना है, तो सोचना पड़ता है कि कुछ ही सिंप्लीफाई हो जाए। तो साइन थीटा हो गया 2 sin थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है ऑलवेज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कैंसिल, इससे ये एक पार्ट कैंसिल, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2 dy बाई dx। अभी यहाँ एक इशू जनरेट होगा, और वो इशू जनरेट ये होना है कि आपको इसका करना है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये आएगा d2y बाई dx स्क्वायर तभी, लेकिन इधर है थीटा बाई 2, तो आप डिफरेंशिएट तो कर दीजिए। कॉट थीटा बाई 2 का होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 से आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय हाफ, लेकिन माय डियर आपको साथ में लिखना पड़ेगा डी थीटा बाई dx, क्योंकि आपने डिफरेंशियल किया था विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्योंकि ये दूसरा वेरिएबल था, इसे आप कांस्टेंट तो कह नहीं सकते, तो हमने डिफरेंशियल तो किया, लेकिन साथ में लिखा डी थीटा बाई dx। और माय डियर डी थीटा बाई dx की वैल्यू कहाँ से पुट करनी है? a यहाँ से पुट करनी है आपको, तो डी थीटा बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? अभी मैं इसको लिखता हूँ पहले, that is minus half इसको मैं लिख देता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लालच है थोड़ा सा। डी थीटा बाई dx को लिखेंगे डी थीटा, ये रहा, इसको रेसिप्रोकल करके मीन्स 1 अपॉन a 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक और आ जाएगा बेटा यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैं कह सकता हूँ अब माइनस 1/4a, नीचे छोड़ना चाहें नीचे छोड़ सकते हैं, साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2, और अगर ऊपर लिखना चाहें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 की फॉर्म में आप आंसर को लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? इसमें जो इंपॉर्टेंट इशू था डियर, वो इंपॉर्टेंट इशू था, ये था कि डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू आपको पुट करनी है, ये इंपॉर्टेंट इशू था।
और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ भी जाते हैं। पैरामीट्रिक का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो एवरीवन इज क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके, कल हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कंटिन्यूटी, और ये लेक्चर अभी अपलोड हो जाएगा, इसको आप फिर से वॉच कर सकते हैं। जो आज एब्सेंट रह गए उनको बोल दीजिएगा, आज स्ट्रेंथ कम है, ओनली 11 पार्टिसिपेंट हैं आज। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. नमस्ते सर। नमस्ते, वेलकम।